Okay, so what I will do, I will cross these two materials. So only grey cast iron will be the default material for all sort of calculations. Okay, fine. Again, then we will go to the project. We will define the geometry. Go to this, right click. I will use design modeler as a basic geometry. Means preparing the basic geometry. Okay. Okay. Now again, I will just select XY plane. We will see a plane. I mean, we can see this through this. Okay. Then sketching. I will just generate a line. Okay. So what I will do, I will just generate a horizontal line. I don't know the length. Okay. How I can do it now? I can go to the dimension. I will pick horizontal. I will click this. Okay. I will. What I will do is make it isometric. Fine. If I go to general material. Okay. Now see, you can see 74 meter, but I want all the things in mm. So I will go and select and make it mm. And now I can change the length. Okay. So I wanted last time the length what we have taken is 150, right? So I want 150 I will just press 150 and press enter. Okay. Once this is done, I will click generate. Okay. Okay. So this is something length, right? This is the length. Okay, now what I need to do is, once I generate this geometry, I will go to this create, sorry, I will go to concept, okay, and then lines from sketches. So I will select this, I will generate a line. Initially it was a sketch, but now I generated into a line. Now what is the next step? Now I can define the cross section. How? If I go and select this, I need to generate this line. Okay, so once this line is generated, now if I go to concept, if I go to cross section, see now I can define a rectangular geometry. See, it's asking me what sort of dimensions I want. So let's say this is 50 okay, and again this is 50 okay. Once this is okay, just press enter. Okay, so the geometry is going to be generated. So once, okay, so where is that geometry? Can you find it out? Now when you go to the tools, I will make it isometric. Okay. So now if I go to this model, we already generated this cross section. Okay. हम लोग ने सिर्फ लाइन बनाया. We have just defined the length, and based on that, the geometry is going to be generated. देखो सिर्फ लाइन दिख रहा है, राइट? बट अगर मेरे को क्रॉस सेक्शन देखना है, ये क्रॉस सेक्शन उसका डिफाइंड है. देखो यहाँ पर जो भी वैल्यूज दिया रहेगा, ऑन द बेसिस ऑफ इट क्रॉस सेक्शंस कैन बी डिफाइंड. ओके, सो व्हाट आई विल डू इज, हम लोग ऑलरेडी डिफाइन करके रखे हुए हैं. देखो यहाँ पर रेक्टेंगुलर वन दिख रहा है, ये ऑलरेडी क्रॉस सेक्शन है. सो फर्स्ट थिंग इज, आपने ज्योमेट्री इंपोर्ट किया, यू नीड टू डिफाइन द मटेरियल. क्रॉस सेक्शन क्या है, यहाँ पर देखो रेक्टेंगल सेलेक्ट करना पड़ेगा. वंस यू डिफाइन इट इज ए रेक्टेंगल, एंड देन असाइनमेंट करना पड़ेगा. कौन सा मटेरियल? ग्रे कास्ट आयरन. सो वी डिफाइन द मटेरियल ऑल्सो. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डू द मेश. अभी देखो मेश कैसे हुआ, कैसे दिख रहा है मेश?
नोड्स बन गया, अपन जो क्लास में पढ़े नोड्स बन गया, छोटे छोटे नोड्स दिख रहे है ना, और उसको कनेक्ट करने के लिए एलिमेंट बने, है ना। ओके, नाउ इफ आई गो ओवर देयर एंड अगर मैं क्रॉस सेक्शन बोलूंगा, ठीक है, अभी एनालिसिस तक अपन देखते हैं, उसके बाद फिर मैं आप लोग को, ठीक है। सो नाउ वंस वी हैव डन द मैशिंग, अभी इंसर्ट करेंगे अपन क्या, सबसे पहले फिक्स सपोर्ट, राइट। फिक्स सपोर्ट किधर सेलेक्ट करना है अपने को, देखो ये पकड़ना पड़ेगा, पॉइंट पर पकड़ना पड़ेगा। सो दिस इज माय फिक्स सपोर्ट, राइट। बट अभी देखो लास्ट कंडीशन पे मैंने क्या किया था, जो, हाँ, एलिमेंट पकड़ के किया था, बट इसमें एलिमेंट अपन नहीं पकड़ सकते, इसमें अपने को पॉइंट पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। सो if I want to define the load, ठीक है, अभी इसमें भी वेक्टर डायरेक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, कौन सा डायरेक्शन, वाई, दिख रहा है वाई एक्सिस पे, है ना। सो वाई एक्सिस में हम लोग ने 100 पकड़ा था, वाई एक्सिस मतलब पॉजिटिव जा रहा है ऊपर, तो अगर मैं फोर्स डिफाइन करूंगा तो ये ऊपर की ओर ही जाएगा, मेरे को डिफाइन कैसे करना है, नीचे, तो कितना देना पड़ेगा, माइनस। सो वंस यू डिफाइन माइनस, अभी दिख रहा है नीचे फोर्स है, राइट। इसको क्लिक करोगे तो देखो तुमको दोनों फोर्स कौन कौन से लगे हैं वो दिख रहा है, ठीक है। अभी देखो क्रॉस सेक्शन भी है, दिख रहा है। इफ यू वांट टू हैव द मेश, इसका मेश नहीं आ रहा, तो देखो ये पॉइंट के रेस्पेक्ट में हो रहा है, क्योंकि एक ज्योमेट्री दिख रही है वो, बट वो पॉइंट के रेस्पेक्ट में वर्कआउट कर रहा है। एंड देन यू विल गो टू दिस डिफॉर्मेशन टोटल, देन सॉल्यूशन, स्ट्रेसेस, ये बीम स्ट्रेसेस बन जनरेट होगा कि क्या होगा, एक्सियल फोर्सेस की बेंडिंग मोमेंट, ये सही होगा क्या, जनरेट होगा, लेट्स सी, नहीं ज्यादा ज्यादा नहीं होगा सॉल्व, राइट। ओके, सो okay, so now if I go here and also define the cross section, अभी देखो इसका मूवमेंट कैसे हो रहा है उसको जानना, ए बीम विथ लोड, और वैसे ये बेंडिंग का, ओके। अगर 2D पे देखना है, जैसे ये आइसोमेट्रिक है, व्यूज पर गए, फ्रंट व्यू, ठीक है। अभी देखो इफ यू गो टू दिस बीम टूल, ये बीम रिजल्ट पे अगर गए, इसमें एक्सियल फोर्सेस का भी, ये जो एक्सियल फोर्सेस रहता है एक्चुअल में ट्रस में हेल्पफुल होता है, एक्सिस के अराउंड फोर्स क्या है वो आइडेंटिफाई करने के। बेंडिंग मोमेंट अपन ने ऑलरेडी निकाल चुका है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकलेगा क्या, शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकलेगा, कौन से केस में निकलता है शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बीम के केस में निकलता है ना। अच्छा ये बीम क्यों है, बार क्यों नहीं है, क्रॉस सेक्शन बीम में भी कर सकता हूँ, बीम और बार में तुम लोग सॉम में क्या पढ़े, मैं 0 मार्क दूंगा, नहीं तो क्या पढ़े तुम लोग, बीम और बार में डिफरेंस क्या होता है, गलत। तुम लोग 8.5 लाख के जॉब के लिए जा रहे हो, 8 लाख मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, हाँ बताओ भाई, बार और बीम में डिफरेंस क्या होता है,
कोई माइकल लाल बता सकेगा जो बार और बीम में डिफरेंस? बार में भैया एक्सियल लोड लगता है भैया, बार में एक्सियल लोड लगता है। बीम में कैसा लोड? परपेंडिकुलर लोड लगता है। दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन बार एंड बीम। तो आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कौन सा बार है और कौन सा बीम है भैया। ठीक है, इंजीनियर को यही सब चीजें याद रखनी है भाई। फॉर्मूला कोई नहीं पूछने वाला, तुमको बेसिक्स पूछने वाला है हर कोई। ठीक है, चीजों को समझते आना चाहिए, रटो मत रे भाई, डोंट मग अप द थिंग्स। ओके, सो दिस इज व्हाट केस, बीम और ए बार। क्या है ये? बीम है। क्यों? परपेंडिकुलर लोड है, सीधा सीधा समझ में आ रहा है। ओके, नाउ कैन आई फाइंड आउट द फोर्स रिएक्शन इन इट? निकाल सकता हूँ क्या? कहाँ पर निकाल सकता हूँ? फिक्स सपोर्ट पर। अभी देखो इसका मैग्नीट्यूड कितना बता रहा है? 100 बता रहा है। सही बता रहा है, बाई डायरेक्शन में ही फोर्स है, मतलब सही बता रहा है, राइट। सो अपन रिएक्शन में निकाल सकते हैं, है ना। अगर मैं दोनों तरफ सपोर्ट दे दिया, आई कैन फाइंड आउट द रिएक्शन, आई कैन फाइंड आउट द बेंडिंग मोमेंट, आई कैन फाइंड आउट एनी काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट। जो इसमें हम लोग जितना भी फोर्स लगा करके सॉल्व करते हैं, अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। आई होप सो यू गेट इट। ओके।